In chapter 2nd, Olympic value education, Olympic values are more than just words, they are a way of life. In 2024, we celebrate the essence of sportsmanship through education. There are 5 educational values of Olympic, such as joy of effort, fair play, respect for others, pursuit of excellence, and balance in life between body, will, and mind. Namaskar, my Ajay Kumar once again welcome you in today's super class. Again, I want to notify you that we are going to explore 5 Olympic value of education one by one. So let's start today's class. Olympic value education. The Olympic values is based on Olympic philosophy that learning takes place through balanced development of body and mind. What is saying? Olympic value is based on what? It based on Olympic philosophy. Philosophy, you know, philosophy means धारणा, शास्त्र, सिद्धांत. ओके, मीन्स ओलंपिक के जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, बेस्ड है. ओके, जो कि लर्निंग टेक्स प्लेस. और इस ओलंपिक के सिद्धांत में क्या होता है? लर्निंग हमेशा होती है. कैसे? थ्रू अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड. और इसमें हमारे बॉडी और माइंड का जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस्ड वे में होगा, तभी उसका कंप्लीट माना जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर है. नाउ कम टू नेक्स्ट 5 एजुकेशनल वैल्यूज विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग. और जो हम 5 एजुकेशनल वैल्यूज की डिस्कशन करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस एंड दैट इज डिपेंड ऑन 3 डोमेन्स of learnings. Okay, what that domains are? That domains are mental, emotional, and physical. These are the main domains on behalf of which we will find out, or we will just study the 5 educational values. Okay, let's see that values one by one. First one, joy of effort. Second one, fair play. Third one is respect for others. Fourth one is pursuit of excellence. And last, balance in life between body, will, and mind. Okay, let's discuss one by one. First one is joy of effort. Okay, so let's see. According to the UNESCO charter, you know, UNESCO is an international society organization, okay, which work for education for poor people. Okay, now every human being has a fundamental right to access to physical education. और ये सभी का अपना राइट्स है. दिस इज देयर ओन राइट, ह्यूमन राइट टू टेक एजुकेशन in physical education as well as in sports also, which are essential for full development of his or personality. And in education, only physical education is a branch in which an individuals can develop in all direction, all dimensions, and makes a person a good, having good personality. Okay, the freedom to develop physical, intellectual, moral powers through physical education. अगर आप फ्री, अपने को फ्रीडम टू डेवलप, आपको डेवलप करने के लिए फ्रीडम है. कैसे? फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मोरली, जिससे कि आप क्या हो, स्ट्रांग हो फिजिकल एजुकेशन में. एंड स्पोर्ट्स मस्ट बी ग्रांटेड बोथ विद इन द एजुकेशनल सिस्टम एंड इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ. और ये जो प्रोवाइड करता है आपको, ये गारंटेड आपको सिस्टम प्रोवाइड करता है कि एजुकेशनल सिस्टम और एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ दोनों के रेस्पेक्ट में आपका जो गारंटेड जो पर्सनालिटी है वो ग्रो हो. ठीक है. Now, sports for physical activities should be promoted with appropriate opportunity, okay, to enjoy the energy and effort with relative outcomes. So, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स है,
ये क्या कह रहा है कि इस तरीके से अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे कि हम अपनी एनर्जी और एफर्ट को रिलेट करके आउटकम्स निकाल कर इंजॉय कर पाएँ। बेशक ऐसे ही होता है हमारे फिजिकल एजुकेशन में। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, फेयर प्ले। ओके, फेयर प्ले मीन्स नो पार्शलिटी इन द गेम्स। फेयर प्ले इज कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स। ये किसका कंसेप्ट है? स्पोर्ट्स का है। इट कैन बी अप्लाइड इन मेनी डिफरेंट वेज। और ये फेयर प्ले को हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में, डिफरेंट डिफरेंट वेज में अप्लाई कर सकते हैं। कंटेस्ट बियॉन्ड द स्पोर्ट्स फील्ड। और ये कहाँ अप्लाई होगा? हमेशा स्पोर्ट्स फील्ड पे होगा। ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड के रिलेशन में ना। फेयर प्ले रिफर्स टू प्लेइंग बाय द रूल्स। और फेयर प्ले रिफर करता है कि वी जस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स ऑन फील्ड। Learning fair play behavior in sports can lead to the development and reinforcement of similar behavior in one's everyday life। और क्या कहता है? जो फेयर प्ले बिहेवियर लर्न करता है, अगर उसमें लर्निंग कर रहे हैं इन स्पोर्ट्स कैन लीड, और स्पोर्ट्स में आपको क्या करेगा? आपको या किसी की लाइफ को, इंडिविजुअल लाइफ को हर डे, एवरी डे makes development and reinforcement of similar behavior। reinforcement सुदृढ़, मजबूत बनाता है आपको। ठीक है, अगर आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में फेयर प्ले करते हैं तो। ठीक है, आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एन इंडिविजुअल डेवलप्स द हैबिट ऑफ फेयर प्ले। और आप क्या करते हैं? आप पार्टिसिपेट करते हैं इन स्पोर्ट्स में, यानी तो एक एक बंदे को इंडिविजुअल्स को जो फेयर प्ले की हैबिट है वो डेवलप हो जाती है। दैट इज रिफ्लेक्टेड इन हीज एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन लाइफ। और वो जो फेयर प्ले के जो एटीट्यूड है, इफेक्ट है, वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट होकर आपके रियल लाइफ में इम्पैक्टफुल लाइफ बना देते हैं टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड हिज शी लाइफ्स इन। और ये सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं, कम्युनिटी में भी आपको क्या करता है? इम्पैक्टफुल एटीट्यूड देता है। ठीक है, अगर आप फेयर प्ले करते हैं स्पोर्ट्स में। इन स्पोर्ट्स एन इंडिविजुअल फॉलोज द रूल्स। और फेयर प्ले में क्या होता है कि आप जब भी प्ले करें इस फील्ड में तो यू जस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। रेफरी एंड ऑफिशियल्स इन्फोर्स रूल्स थ्रू पेनल्टीज एंड punishments, and if someone is not following the rules of the games on the field, that person just had to follow the rules, and that is followed by that enforce done by referees and officials through penalties or either punishments। Okay, now come to next, third one, respect for others। Okay, what is the respect for others? As per the Olympic Charter, goal contribute to build a peaceful and better world। ठीक है, जो चार्टर्ड है ओलंपिक का, उसमें गोल है, क्या गोल है? टू कंट्रीब्यूट बिल्डिंग अ पीसफुल एंड बेटर वर्ल्ड। और ये क्या कहता है कि हमें स्पोर्ट्स के ज़रिए क्या करना है? एक पीसफुल और बेटर वर्ल्ड रेडी करना है बाय एजुकेटिंग यूथ थ्रू प्रॉपर स्पोर्ट्स प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद द ओलंपिज्म एंड इट्स वैल्यूज़। और जो हमारा यूथ है उनको स्पोर्ट्स के ज़रिए, ठीक है, ओलंपिक वैल्यूज़ के ज़रिए हमें क्या करना है? उनको प्रॉपरली प्रैक्टिस करा के एजुकेट करना है। ठीक है, सब मिला के स्पोर्ट्स के ज़रिए हमें पूरे वर्ल्ड में शांति लानी है और यूथ को एजुकेट करके बेटर वर्ल्ड डेवलप करना है। नाउ नेक्स्ट, लिविंग इन अ मल्टीकलर वर्ल्ड वी नीड टू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड प्रमोट पीस। और दिस इज द thumb rule of our environment. There is a different colors in the environment or nature. So in our human beings there are also diversity, so we just accept and respect all the diversity, and then after we will promote the peace, otherwise never it will happen। Okay, now we should appreciate the worth of peoples, all cultures, irrespective of race, age, gender, ability। Okay, so we should appreciate everyone, we should appreciate of वर्थ ऑफ ऑल पीपल्स, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो मिडिल है, चाहे जैसा भी है। ठीक है, उसके और यही नहीं, उनके जो सभी कल्चर्स हैं, ठीक है,
चाहे अब उस कल्चर को छोड़े आगे बढ़ें, तो उनकी जो रेसेस है, एज है, जेंडर है, एबिलिटी है, सबको किनारे करते हुए जो उनकी एबिलिटी है, उनकी जो बातें हैं, उसके लिए हमें रिस्पेक्ट करना है। वायलेंस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब बाय द वे, दो प्लेयर हैं ए एंड बी, इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि इनके बीच में क्या हो, वार हो। इसमें हम पीसफुली अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ऐसे ही करना है स्पोर्ट्स के ज़रिए कि वायलेंस भी ना हो और कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लिया जाए और बेस्ट वर्ल्ड डेवलप किया जाए। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, परसूट ऑफ एक्सीलेंस। ओके, सो लेट्स सी परसूट। यू नो, परसूट मीन्स शौक, ठीक है, एक अच्छा करने का, बेस्ट करने का आपके अंदर जुनून, जज्बा, शौक हो आपका, ठीक है वो। इन टुडेज कंपटीशन एंड डिमांडिंग वर्ल्ड एंड इंडिविजुअल्स फोकस इज टू बिकम बेस्ट। आज की जो लाइफ, आज का जो वर्ल्ड है, इसमें सभी लोग अपने को बेस्ट बनाने का फोकस कर रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक मी आल्सो, आई एम आल्सो ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ बेस्ट in the physical education. Okay, in physical education I am also trying to make myself best. Okay, focusing on excellence can help young people to make positive, healthy choice, and strive to become best they can be in whatever they do. और सभी का क्या करना है, फोकसिंग ऑन एक्सीलेंस कैन हेल्प यंग पीपुल। और हम सभी को किस पर फोकस करना है, उन बच्चों के ऊपर जो पॉजिटिवली या हेल्दी चॉइस से क्या कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, उनके एक्सीलेंस पर हमें फोकस करना, हेल्प करना है। एंड स्ट्राइव टू बिकम द बेस्ट दे कैन बी इन वॉट एवर दे डू। और जो कर सकते हैं, जो हैं, उसमें उन्हें क्या करना है, बेस्ट करने के लिए उनको स्ट्रगल करना चाहिए, स्ट्रगल करने के लिए हमें बनाना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, a healthy, clean and safe community makes the welfare of young people its number one priority। और जो भी यंग पीपल्स हैं, उनकी प्रायोरिटी में नंबर वन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, हमें अपनी कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, हेल्दी होना रखना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। ये हमारे यंग पीपल के अंदर अपने सोसाइटी के लिए होना चाहिए। स्पोर्ट्स शार्पन स्किल्स एंड अटेंड्स टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन। और स्पोर्ट्स जो है हमारी स्किल्स को शार्पन करती है, उसको निखारती है और हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है जिससे कि जो बच्चों की नीड है उसके लिए हम क्या करें, खड़े हो पाएँ। ओके, एंड यूथ, गर्ल्स एंड बॉयज़, children with learning disabilities and children with hearing, vision and other physical disabilities। और ये चीज़ें ये डिफरेंट टाइप्स के साथ हो सकती है। वो गर्ल्स एंड बॉयज़ हो सकते हैं, या चिल्ड्रन जो जिसके अंदर डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, या उनको हियरिंग प्रॉब्लम है, विज़न की प्रॉब्लम है, या फिजिकल डिसेबिलिटी है। उन सभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा डेवलप करना चाहिए कि उनके स्किल्स क्या हो, शार्पन हो पाए, ठीक है ना। सी नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट एंड फियर। और जो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन्वायरमेंट है वो डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट और फियर से दूर एक फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, ये हम ही कर पाएंगे। ओके, इट इज़ आल्सो अ प्लेस इन विच इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड कल्चरल ट्रेडिशन आर वैल्यूड एंड रेस्पेक्ट। और एक जगह पे खड़े हों तो वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन सभी को मिलकर सब क्या करें, सेलिब्रेट करें। दैट इज़ द प्लेस where respect for each other can be seen. Okay, now come to next and last. What is this? Balance between body, will and mind। हमारे पास बॉडी है, विल है, माइंड है। BMW कह सकते हैं इसको, BMW क्या होती है, कार होती है जो कॉस्टली होती है, ठीक है। तो उसको पाने के लिए हमें बहुत वर्क करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे बॉडी की ये BMW जो हैं, उनके बीच में जो बैलेंस करना है उसके लिए भी हमें काफ़ी वर्क करना पड़ता है। व्हाट आर द वर्क, लेट्स सी। पीरियडिक बुलेटिन अंडरस्टूड दैट इंटरनेशनल रिवाइवल ऑफ ओलंपिक गेम्स
would stimulate interest in sports and physical activity among the young people. पीरियड इंक्यूबेटिन को ये फील होता है, ये समझ में आता है कि अगर हमें यंग पीपुल हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उनके बीच में हमें स्पोर्ट्स के प्रति क्या करना है, इंटरेस्ट लाना हो, उनको फिजिकली एक्टिव रखना हो, फिट रखना है, तो हमें ओलंपिक को रिवाइवल करना पड़ेगा, ठीक है, जन्म उसको देना पड़ेगा, पुनरुत्थान करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द फोकस ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द स्पोर्ट्स। और ओलंपिक मीन्स इट इज़ नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स हैं, उससे आगे बढ़ के मॉडर्न ओलंपिक क्या करता है, इम्प्रेसिंग कल्चर्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन। स्पोर्ट्स से बढ़कर क्या करता है, इम्प्रेसिंग द कल्चर को बढ़ावा देता है, आर्टिस्टिक वर्क को बढ़ावा देता है, अवेयरनेस भी लाता है इन्वायरमेंट का, और साथ ही एजुकेशन के लिए भी क्या करता है, प्रमोट करता है कि हमें एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन पे भी फोकस करना चाहिए। मीन्स थ्रू स्पोर्ट्स ओलंपिक इज ट्राइंग टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन इन ईच एंड एवरी डायमेंशंस ऑफ द लाइफ टू मेक अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड पीस। ओके, नाउ नेक्स्ट, he believed in the concept that learning happened in the whole body. okay, ये बिलीव करते हैं कि जो हमारे बॉडी में जो भी कुछ चीज़ें हो रही है, हमारे कंसेप्ट और लर्निंग से ही हो पाती है, नॉट जस्ट इन द माइंड। हम जो सोच लें उससे नहीं होता है, हम जो सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव चेंज होते हैं। फिजिकल लर्निंग टुक प्लेस इन बोथ बॉडी एंड माइंड। और फिजिकल लर्निंग भी क्या होती है, हमारे माइंड और बॉडी दोनों में होती है, बट इट कुड नॉट बी डन विदाउट विल। और ये जो है विदाउट विल ये पॉसिबल नहीं है। हम सोच लेते हैं, हमारी शरीर भी अच्छी है, हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया है, लेकिन हम उसको करने की इच्छा नहीं रखते हैं, हम करते नहीं हैं, उसको छोड़ते, अरे छोड़ो क्या ही है, तो वो नहीं हो पाएगा। स्पोर्ट्स इज अ मीडियम ऑफ बैलेंसिंग बॉडी, विल एंड माइंड। और स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए हम ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, अपने माइंड में, अपने बॉडी, या यूँ कहें कि परफॉर्मेंस में ला सकते हैं। ओके, फॉर टुडे ओनली अप टू दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंस्पायरिंग कंटेंट।